Hello, I'm Praveen Sonawani. You are watching India's most reliable and relevant educational channel where you get best in class study material and video lectures. Do check the link in the description box. Today we are going to start with a very interesting chapter of your biology textbook, that is cell cycle, cell division and structure of chromosomes. As always, first have the look at the scope of the syllabus. So this is what we are going to learn today. This diagram shows cell cycle and cell division. Diagram देखकर तो डर लगता है, क्या ये difficult होने वाला है? No, this is not going to be difficult. It's going to be very easy. Understanding this diagram is understanding the cell cycle. So this cell cycle can be divided into two phases. इसके दो भाग हो सकते हैं. So first phase is called the phase of interphase and the second phase is the phase of mitosis. So this entire cell cycle start with this first, which is called the interphase. Now this interphase is the long phase and this mitosis phase is the short phase. ये जो माइटोसिस है तो एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है वो यहाँ माइटोसिस पर होता है. सो व्हाट हैपेंस एट द इंटरफेस? सो एट इंटरफेस the cell prepare itself for the cell division. What is a cell division? Cell division is a division of mother cell into two daughter cells. तो एक मदर सेल का दो डॉटर सेल्स में डिवीजन होना इज अ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस in which this daughter cell, this smaller daughter cell will undergo a division. This single cell will be divided into two daughter cells. So before actually cell division happens, so cell has to prepare itself for a cell division. So this process of preparing itself for a division is the interphase and this phase is a longer phase. क्या आपको लगता नहीं है कि एक सेल को डिवीजन होने से पहले कुछ समय मिलना चाहिए कि वो अपने आप को तैयार कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके, कि वो अंडरगो कर सके सेल डिवीजन के लिए? तो यही फेज होता है इंटरफेज और ये अच्छा खासा लंबा पीरियड होता है. दिस इज अ लॉन्ग फेज. सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन विच इज अ लॉन्ग फेज, इंटरफेज or a mitosis phase. So longer phase is the interphase and comparatively mitosis is the smaller phase. So now that we have understood what is the interphase, let us try to understand what happens in the interphase. जैसे हम लोग पहले बोल चुके हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेस सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. किस लिए प्रिपेयर करता है? ताकि वो सेल डिवीजन कर सके. तो सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं लाइक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, तो सेल को क्या करना पड़ता है? इसको सब डुप्लीकेट करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, ताकि जब डिवीजन हो, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बने, तो दोनों डॉटर सेल के पास वो सब कुछ हो जो पहले मदर सेल के पास था. सो ड्यूरिंग इंटरफेस the entire procedure goes on कि the material which is present inside the cell undergoes a process where it duplicate itself. सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस माइटोसिस एक्चुअली सेल डिवाइड्स इनटू टू. तो थोड़ी देर के लिए हम लोग माइटोसिस को रखते हैं साइड में और हम लोग फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंटरफेस पर. तो हम इस इंटरफेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: G1 phase, S phase and G2 phase. So G1 phase is the first phase of growth. S phase means synthesis phase and G2 phase is the second phase of growth. So G1, S and G2, G1 और G2 बीच में S क्यों और why not G1, G2 and G3? वो इसलिए कि ड्यूरिंग S phase synthesis happen. G1 and G2 phase में बहुत सिमिलैरिटीज होती है, इसलिए G1 and G2 phase और S phase में कुछ अलग होता है जो G1 और G2 में नहीं होता. तो हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं. Look at this chart. This chart tells us everything about cell cycle and cell division. अभी हमने देखा सेल साइकिल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. वन इज द इंटरफेज, लॉन्गर फेज या इसका लंबा फेज, एंड अनदर वन इज द माइटोसिस. बट लेट अस नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस माइटोसिस राइट नाउ. थोड़ी देर के लिए माइटोसिस को भूल जाते हैं. वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंटरफेज. So I just said कि interphase can be divided into three phases: G1 phase, S phase and G2 phase, which means first growth phase, synthesis phase and second growth phase. If you have understood this, we will move on to the next slide. अरे ये क्या, हम तो पुराने वाले स्लाइड पर ही आ गए. No problem. तो हम एक ही जगह घूम रहे हैं कि सेल साइकिल हैज़ टू फेजेस, इंटरफेज एंड दी माइटोसिस फेज. इंटरफेज ये लंबा फेज होता है, माइटोसिस जो होता है वो छोटा सा चिंटू सा फेज होता है.
तो इंटरफेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 phases, G1 phase, S phase, G2 phase. I am repeating this so it is drilled into your mind. तो इंटरफेस होता क्या है? When you observe a cell during this phase, तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, nothing is happening, everything is in a state of rest. But नहीं, उसके अंदर inside the cell lot of activities are happening. The cell is preparing itself for the actual cell division to move on to the second phase, which is the mitosis phase. तो ये सेल जो है, you will see इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे एक छोटू सा चिंटू सा सेल जो है वो आगे चलकर जो है वो बड़ा हो जाता है और वो होता है G1 फेज में। तो उसके अंदर जो अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी apparatus होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इन सब चीज़ों को जो है डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का डुप्लीकेशन, इनका डबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब अंदर होता है। ड्यूरिंग दिस फेज यू विल सी दैट सेल इज ग्रोइंग इन अ साइज, सो दिस फेज इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ग्रोथ फेज? तो ग्रोथ फेज में हमको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है वो अभी आगे चलकर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर का वाटरी पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। एंड आप नीचे देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल एंड नॉट इन द एनिमल सेल। आपको पता ही होगा क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस हैपेंस हियर। Then comes mitochondria. It is called the powerhouse of the cell. उसके बाद DNA and RNA. DNA के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग RNA पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो DNA इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। DNA इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल सीढ़ी के जैसा या लैडर के जैसा, बट इट इज इंटरवोवन। DNA इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बट लुक एट द RNA, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड। तो ग्रोथ के इस पहले फेस में यानी G1 फेस में होता क्या है? तो सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस मतलब 2-3 अलग अलग चीज़ों को ले लो, उसको जोड़कर नई चीज़ बना लो। कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सिंथेसिस। सो ड्यूरिंग दिस फेज, G1 फेज, सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस एंड साइटोप्लाज्म सिंथेसिस हैपेंस। तो आपको ये याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग इसको याद रख सकते हैं MRPC यानी मिस्टर PC। सो आपको याद रखना है यहाँ पर सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, R से सिंथेसिस होता है RNA का, P से सिंथेसिस होता है प्रोटीन का एंड फाइनली C से सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म का। सो मिस्टर PC। एंड जैसे ही साइटोप्लाज्म मीन्स वाटरी पार्ट ऑफ अ सेल उसका सिंथेसिस होता है तो सेल थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम देखा था, सेल साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। एंड आफ्टर G1 फेज सेल के पास 2 रास्ते होते हैं। It can either go to a resting phase or a G0 phase, or it can go to a second phase, that is synthesis phase. ये resting phase होता क्या है? तो you can see here on a screen, in late G1 phase, the cell must follow one of the 2 paths. They may either withdraw from the cell division. Cell division से बाहर निकल गए, जैसे IPL या वर्ल्ड कप से कोई टीम बाहर हो जाती है, and they enter into a resting phase. रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, no more cell division. These brain cells and nerve cells undergo the resting period. आपने सुना ही होगा कि ब्रेन का विकास पहले 4 साल में होता है। देन ब्रेन डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द सेल डिविजन। सेम थिंग इज विद द नर्व सेल। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे अंडरगो द रेस्टिंग पीरियड। और लीवर के सेल जो होते हैं वो साल में 1 या 2 बार ही सेल डिवीजन करते हैं टू रिपेयर देयर डैमेज सेल। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज मिस्टर PC। तो आपके एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इंटरफेस, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एंड आउट ऑफ दिस 3 phases, इन तीनों में से G1 फेज सबसे लंबा फेज होता है। यस, out of 2 phases of cell division, that is interphase,
एंड फेज ऑफ माइटोसिस इंटरफेज इज द लॉन्ग पीरियड, और इस लॉन्ग पीरियड के अंदर जीवन फेज जो होता है वो सबसे लंबा पीरियड होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग जीवन फेज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड्स। हाँ, एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन DNA. R stands for RNA synthesis, P stands for protein synthesis, and C cytoplasm watery part, and C cytoplasm watery part increases in the volume. That's it. Now next two phases are synthesis phase or S phase and second growth phase. Let us try to understand this. सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। सो ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज DNA सिंथेसिस हैपेंस एंड क्रोमोसोम आल्सो डुप्लीकेट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज ये DNA जो है वो सिंथेसिस होता है और क्रोमोसोम का सिंथेसिस भी होता है। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे उस वक्त इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। G2 फेज या सेकेंड ग्रोथ फेज, इसको G2 कहा गया है क्योंकि जीवन में जो हुआ था वही कुछ चीजें जो है G2 फेज में भी होती है। ओके, व्हाट हैपेंस हियर इज मोर प्रोटीन सिंथेसिस, मोर RNA सिंथेसिस। सो दिस एक्टिविटीज ऑलरेडी हैड टेकन प्लेस इन G1 phase, hence it was named as a G2 phase. So we have seen all three stages of the first phase of cell cycle, that was interphase, and interphase involved three sub stages, that is G1, S and G2 phase. With this we are moving to a new stage, or the stage where actually cell division happens. So that is the mitosis phase, most important phase, and most of the question which you are going to get in your examination will be from this phase. So we can say that during mitosis following two processes happens. One is the karyokinesis and another one is the cytokinesis. अब आपको ये समझना है कि what is karyokinesis and what is cytokinesis. Any biology teacher will tell you that divide the biological term into its root words. Like in case of karyokinesis, we can divide this karyokinesis into two parts. One is karyo and another one is kinesis. Karyo मतलब होता है न्यूक्लियस और किनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकिनेसिस वो फेज होता है जहाँ पर सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फेज होता है दैट इज साइटोकिनेसिस। अगेन हम इस बायोलॉजिकल वर्ड को उसके रूट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। साइटो वर्ड आता है साइटोप्लाज्म से, और किनेसिस जैसे हम लोग बात कर चुके हैं किनेसिस यानी डिवीजन। तो साइटोकिनेसिस में होता क्या है, तो साइटोप्लाज्म यानी वाटरी पार्ट ऑफ द सेल दैट डिवाइड्स इनटू टू। यह बहुत आसान है। इस माइटोसिस फेज में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती है, और इस माइटोसिस फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैरियोकिनेसिस और दूसरा होता है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और एट द एंड ऑफ द माइटोसिस यू आर गोइंग टू हैव अ टू डॉटर सेल्स। फ्रॉम वन मदर सेल वी गेट टू डॉटर सेल्स। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सेल को कहा जाता है मदर सेल और डॉटर सेल्स। ऐसे क्यों नहीं कहा जाता है फादर सेल एंड सन सेल? क्या हो सकता है इसके पीछे का रीज़न? तो इसके पीछे का रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इन एनिमल वर्ल्ड ओनली और मोस्टली मदर्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर मदर सेल हुआ जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दो डॉटर सेल, और आगे जाकर इन डॉटर सेल्स का भी सेल डिवीजन हो सकता है। हेंस मदर सेल एंड द डॉटर सेल। नाउ हैव अ लुक एट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। क्या आप पहचान सकते हो विच सेल इज़ द प्लांट सेल एंड विच सेल इज़ द एनिमल सेल? आगे बढ़ने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। एग्जाम में डायग्राम आएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि देखकर ही आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। प्लांट सेल इट हैज़ अ सेल वॉल। आप देख सकते हो ये स्क्वायर वाला जो सेल है इसमें सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। बट इफ़ यू लुक एट दिस एनिमल सेल इट हैज़ ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड नो सेल वॉल। सो वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल is that plant cell have the cell wall and animal cell do not have the cell wall। अब एनिमल सेल के पास ऐसा क्या है जो प्लांट सेल के पास नहीं है? अभी अभी हमने देखा कि प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा क्या है, तो सेल वॉल, जो एनिमल सेल के पास नहीं है। वैसे ही एनिमल सेल के पास होता है सेंट्रोजोम।
यहाँ पर ये सेंट्रोजोम. Okay, if you try to find out centrosome in a plant cell, you cannot spot it because it does not have the centrosome. So these are two differences between the plant cell and animal cell. You have to identify the given diagram is a plant cell or the animal cell in a first instance. Remember these differences. Apart from this, अब आप लोग देखेंगे दोनों सेल में कंबाइन क्या क्या होता है. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं न्यूक्लियस पर. तो ये सर्कुलर रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस. ओके, ये सर्कल बड़ा वाला गोला जो दिखाई दे रहा है वो होता है न्यूक्लियस. Inside the nucleus you will see a dark spot. That dark spot is in both the cell, that is nucleolus. Now what is nucleolus? वो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. और फिर ये थ्रेड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ धागा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, those are chromatin threads. And we have to study about this chromatin thread in great detail when we study about structure of chromosomes. So let us continue. So हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइटोसिस प्रोसेस होता क्या है. So we have seen that earlier to mitosis was interphase. इस इंटरफेस ने सेल ने अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, एक्चुअल डिवीजन के लिए तैयार कर लिया है. मतलब क्या, तो सेल के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उसका ड्यूप्लीकेशन कर दिया है. अब सेल के पास सारी चीज़ें डबल डबल है. तो इससे क्या होने वाला है कि जब सेल डिवीजन होगा तो आधी चीज़ें इस पार निकल जाएंगी और आधी चीज़ें उस पार निकल जाएंगी. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस होता कहाँ पर है. तो माइटोसिस हैपेंस इन द सोमैटिक सेल्स. अगेन ये जो वर्ड है सोमा यानी बॉडी, सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स. हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं. वन इज द सोमैटिक सेल्स एंड अनदर वन इज द सेक्स सेल्स. तो माइटोसिस प्रोसेस जो होता है वो होता है सोमैटिक सेल्स में या बॉडी सेल्स में. और जो मियोसिस होता है जो आगे चलकर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा सेक्स सेल्स में. तो फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं सोमैटिक सेल्स पर या बॉडी सेल्स पर. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनका ग्रोथ होना ज़रूरी है, रिपेयर होना ज़रूरी है. अगर कोई कट्स और ब्रूजेस अगर आ जाए बॉडी के ऊपर तो उसका रिपेयर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. और जो सेल पुराने हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनका रिप्लेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से माइटोसिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि माइटोसिस वेयर इट हैपेंस इन अ सोमैटिक सेल. इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड व्हाई दिस माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट? सो माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल. और सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि वन सेल, वन मदर सेल इज एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. अब आप देखेंगे कि ये दो डॉटर सेल्स है वो आइडेंटिकल है लाइक अ मदर सेल. यानी मदर सेल में और डॉटर सेल में अगर आप देखोगे तो कोई अंतर नहीं मिलेगा. दे आर आइडेंटिकल, दे आर एग्जैक्टली सेम. और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रोमोजोम नंबर, जो क्रोमोजोम नंबर मदर सेल में होगा वही क्रोमोजोम नंबर डॉटर सेल में भी होगा. ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो अगर 46 क्रोमोसोम मदर सेल में है तो 46 क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होंगे. तो आई बात समझ में? लेट्स कंटिन्यू. तो जैसे हम लोगों ने देखा है माइटोसिस ये दो प्रोसेस से गुजरता है. कैरियोकिनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोकिनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन या फिर उसके वाटरी पार्ट का डिवीजन. और आखिरी पॉइंट दैट इज बिफोर एंटरिंग इनटू माइटोसिस, इस फेज में आने से पहले सेल ऑलरेडी एक फेज से गुजर चुका है जिसे कहते हैं इंटरफेज. सो ड्यूरिंग दिस इंटरफेज दिस सेल ऑलरेडी हैव डुप्लीकेटेड द डीएनए. डीएनए की क्वांटिटी ऑलरेडी डबल हो चुकी है. डीएनए क्या होता है? हैव सम पेशेंस, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन द नेक्स्ट पार्ट. तो प्यारे बच्चों वक्त आया है आगे बढ़ने का. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ कैरियोकिनेसिस एंड हाउ आर यू गोइंग टू रिमेंबर दैट. रिमेंबर PMAT, PMAT, PMAT. P यानी प्रोफेज, M यानी मेटाफेज, A यानी एनाफेज एंड T एज अ टेलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. During prophase, this is how the cell look, animal cell and the plant cell.
Which is the animal cell, which is the plant cell, how to identify? Look at the centriole. You will see centrioles are present in the animal cell but absent in the plant cell. Now observe these cells carefully. One is the plant cell and another is the animal cell. During the prophase, these centrioles duplicate, that is they double and take the opposite ends of the cell. In animal cell, these centrioles are responsible for the initiation of the cell division. So they duplicate and take the opposite ends of the cell. Here that does not happen in the plant cell. Also, there is no nucleolus, whether a plant cell or animal cell. During the stage of prophase, nucleolus disappear. Also, the nuclear membrane start disappearing. You will see this nuclear membrane, it has started disappearing, it has started breaking up. Also, the spindle fibers are formed from one end to the another end and the chromosomes start taking position on the spindle fibers. During the initial phase of the prophase, you don't have a chromosomes. Instead, you have this chromatin threads. During prophase, these chromatin threads start becoming thicker and thicker by coiling and recoiling, and then it starts appearing in a form of a chromosome. This is our first point. Chromatin fibers condenses and thick chromosomes are visible. If you will observe this cell under a microscope during late prophase, you will clearly see the chromosome. As discussed earlier, कि nucleolus and nucleus membrane disappear. Also, a pair of centriole in case of animal cell duplicate and take the opposite end of the cell. The spindle apparatus starts forming and chromosomes settle on it. Mitosis. Now let us move on to the second phase of the mitosis. Now look at the diagram. Now what you observe, almost everything is same like a prophase. Only difference is that you will see that all the chromosomes align themselves at the central position. So this is our first point, that is all chromosome arranged on a equatorial plate. And centromere. Now what is centromere? The center of the chromosome is the centromere. This centromere attach itself to the spindle fiber. The next phase of mitosis is the anaphase. Have a look at the diagram of the anaphase. अब गौर करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दी एनाफेज एंड द प्रीवियस फेज. अब आप लोग देखेंगे क्रोमोसोम जो बना होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का. दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड एट द ऑपोजिट एंड्स. लुक एट द डायग्राम केयरफुली. And one important change you will observe in the animal cell is the formation of a furrow or a cleavage. Look at the cell carefully. You can clearly see the furrow or the cleavage. Here comes point number 1. Centromere divides. So we already have spoken about centromere, the center of the chromosome that divides into two, and sister chromatids. Chromosome is made up of two sister chromatids. They start separating from one another. The next point is spindle fiber contract and pull the chromatids towards the opposite poles. And finally, furrow develops in the middle cell membrane of the animal cell. If furrow is developing in the animal cell, cell plate will start growing in the plant cell. That is the difference. The difference is that in the plant cell you will see the cell plate growing, and in the animal cell furrow develops. Very important, can be asked in the examination. The next and the last phase is the telophase, और ये है उसका डायग्राम. A point to be noted is that telophase is exactly opposite of the prophase. तो prophase में जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुए थे, गायब हुए थे, वो वापस आ जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे. उसके अलावा ये फरो या सेल प्लेट और ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पिंडल फाइबर्स जिसके ऊपर क्रोमोसोम ने अपने सेंट्रोमियर को, सेंटर को रख दिया था, वो स्पिंडल फाइबर्स गायब होना शुरू होता है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है. सो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर्स. तो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम थिक हुआ था वो फिर से थिन होना शुरू हो जाता है. दैट इज क्रोमोसोम बिकम थिन एंड टर्न इनटू क्रोमैटिन थ्रेड्स. एज वी हैव डिस्कस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस reappears. Also, cleavage furrow deepens
और ज़्यादा गहरा हो जाता है। ये कहाँ होता है? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है? तो ये जो सेल प्लेट है वो बीच में से बड़ी हो जाती है, सो दैट सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। मदर सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. So in plant cell, cell plate is laid down in the cytoplasm at the equatorial plane, exactly at the center. And please remember, do not forget that prophase is exactly opposite of a telophase. और इसी के साथ में कैरियोकिनेसिस, जो माइटोसिस का पहला फेज है, दैट एंड्स, वो खत्म हो जाता है. अब आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट स्टेज of mitosis, that is cytokinesis, जहाँ पर cytoplasm, yes, the watery part will divide into two, and this will be the last stage where a mother cell will be divided into two daughter cells. Moving on to the second phase of mitosis, which is cytokinesis. Student love this because this is very easy. So here cleavage deepens further and mother cell is divided into two daughter cells, and in case of the plant cell, the cell plates equatorially divides the mother cell into two daughter cells. Now these daughter cells, they are not going to rest, instead they will start their preparation for the next cell division. So no aram, only calm, that is cell division. So have a look at these points. After completing mitosis, we are now heading towards meiosis. बट मियोसिस में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, ना कम ना ज़्यादा. तो हमने देखा कि माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में या बॉडी सेल्स में, बट दिस मियोसिस हैपेंस ओनली इन द सेक्स सेल्स, दैट इज इन गैमेट फॉर्मेशन. We already have discussed in a previous part that in human body there are 23 pairs of chromosomes. That is 23 multiplied by 2, which is 46. So out of this 23 pairs, 22 pairs are somatic cells or the body cells, and the last one pair or the 23rd pair is the pair of sex chromosomes. Mitosis is a cell division which happens in these sex chromosomes. Meiosis will happen in that one pair which is a pair of sex chromosomes. You know a theory of X chromosome and Y chromosome. In a male, we have a pair in which one chromosome is X, other one is Y. So the major difference between mitosis and meiosis is that in mitosis, mother cell is divided into two daughter cells. That is, number of chromosome in mother cell and daughter cell is exactly same. बट दिस इज नॉट द केस विद द मियोसिस. मियोसिस में होता क्या है, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होते हैं इक्वली इनटू टू हाफ्स. इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ. अ पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम विच इंडिविजुअल हैज, इन दैट पेयर one chromosome has come from father and the other chromosome has come from mother, and this is what exactly happens in meiosis. So it is rightly said that this division is the reduction division. So remember, in meiosis, reduction division happens. Important point from your examination point of view. In sexually reproductive animals, that is in males, it happens in the testes, and in females, it happens in the ovaries. Whereas in flowering plant, it takes place in the anthers and ovary to produce pollen grains and ovules respectively. Now we are going to learn some of the very important terms. तो सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम. ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं, वन कमिंग फ्रॉम फादर एंड वन कमिंग फ्रॉम मदर, one of paternal origin and other of maternal origin, that are identical in appearance during the meiosis. शुरुआत में ये exactly same होते हैं, exactly इनका appearance जो होता है वो same होता है. Just have a look at the definition. And second one is साइनेप्सिस. तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि सेम क्रोमोसोम पेयर करते हैं, उस पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्सिस. एंड काइस्माटा और एक वचन काइस्मा. काइस्माटा इज द रीजन
where two homologous non-sister chromatid exchange the genetic material in chromosomal crossover during meiosis। सर कुछ समझ में नहीं आया, जरा ठीक से समझा। डोंट वरी, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ध्यान से देखिए इस डायग्राम की तरफ। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ब्लू कलर में क्रोमोसोम है और एक रेड कलर में क्रोमोसोम है। तो एक आया है मदर से और दूसरा आया है फादर से, और दोनों भी होमोलोगस है। होमोलोगस यानी क्या, दोनों जो है वो एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, जो में भी शायद सेम कैरेक्टर्स शो करने वाले हैं। ऐसे सेम क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहला फोटो जो आप लोग देख रहे हैं, पहला पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दे आर अलाइंड नेक्स्ट टू वन अनदर। अब सेकेंड डायग्राम देख लीजिए कि अब क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। तो हम देखते हैं कि बच्चे में कुछ कैरेक्टर्स फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा नाक माँ जैसी है मगर कान या उंगलियाँ फादर जैसी है। तो जब ये कैरेक्टर एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं तो उससे कहते हैं साइनेप्सिस। अब काइस्माटा, अच्छा काइस्माटा जो है वो एक रीजन होता है, वो एक जगह होती है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं मार्क किया हुआ है काइस्मा, और काइस्मा के बाद में आप लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। यू कैन आइडेंटिफाई दैट विद द हेल्प ऑफ द कलर। द क्रोमोसोम विच वॉज ब्लू इन कलर नाउ हैज़ वन पार्ट विच इज़ रेड इन कलर, एंड दी अदर क्रोमोसोम जो लाल कलर में था उसमें जो है ब्लू क्रोमोसोम का पार्ट आ चुका है। तो पहले शुरुआत में वो होमोलोगस क्रोमोसोम था, लेकिन अब वो टेट्राड बन चुका है। तो ये रीजन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे कहते हैं काइस्मा या काइस्माटा। इसे ध्यान से समझ लेना, ये काइस्मा या काइस्माटा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो क्रॉसिंग ओवर, आई थिंक हम ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात कर चुके हैं, सिर्फ रीड करना बचा है तो उसे रीड कर लेते हैं। व्हेन पैटर्नल एंड मैटरनल यानी फादर का और मदर का क्रोमोसोम सेपरेट होता है, द क्रोमैटिन मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस पेयर रिजल्टिंग इन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी मटेरियल का एक्सचेंज होना बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड टेट्राड, टेट्राड के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द 4 पार्ट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस पेयर ईच कंपोज्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड अ टेट्राड। तो इस डायग्राम में आप पांचों चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले एक क्रोमोसोम ब्लू वाला से इज अ पैटर्नल क्रोमोसोम और रेड वाला इज अ मैटरनल क्रोमोसोम, मतलब एक आया फादर से एक आया मदर से। तो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना शुरू करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के बाद में आ जाता है रीजन, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का क्रॉस ओवर होने वाला है, उस रीजन को कहते हैं काइस्माटा। और जो ये प्रोसेस होता है जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो 2 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देते हैं उसे कहते हैं टेट्राड। है ना इजी, टेंशन दूर, लेट्स मूव अहेड। तो फाइनली द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इस पेज से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस फॉलो इट पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले वेर इट अकर्स। So mitosis occur in the somatic cells or the body cells, whereas meiosis occur in the reproductive cells. एंड वॉट फॉर, किस लिए, किस कारण से ये होता है। तो माइटोसिस इज फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। द रेट ऑफ माइटोसिस इज मोर इन अ ग्रोइंग चिल्ड्रन। आपके एज के जो बच्चे हैं जिनकी हाइट इंक्रीज हो रही है उनमें तो ये माइटोसिस काफ़ी हायर रेट में होता है। एट अ सेम टाइम कुछ कट हुआ, वेयर एंड टीयर हुआ सेल का, तो उसको रिप्लेस करना भी ज़रूरी है, इसलिए माइटोसिस। और मियोसिस ओनली फॉर गैमेट फॉर्मेशन, ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट इज वेयर इट अकर्स। तो माइटोसिस इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, whereas meiosis happens only in the reproductive active age. अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, जिसके लिए यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट डायग्राम।
तो हम देखते हैं मदर सेल के पास में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं लिखा हुआ है 2n। एंड आफ्टर दी सेल डिवीजन दिस मदर सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। और आप लोग देखेंगे कि डॉटर सेल में भी एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट इज 2n एंड 2n, बट दैट इज नॉट द केस फ्रॉम मियोसिस। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन एन इंडिविजुअल हु इज अ मेल X chromosomes come from mother and Y chromosomes come from father। तो ये दोनों से क्रोमोसोम आ जाते हैं। So 2n is divided into n and n। तो in case of female X क्रोमोसोम आया मदर से और फादर से भी X क्रोमोसोम आया, और आगे चलकर जो है ये क्रोमोसोम फिर रीडिवाइड होते हैं। एट द एंड यू हैव 4 नंबर्स ऑफ डॉटर सेल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इन माइटोसिस वी हैव 2 डॉटर सेल्स एंड इन मियोसिस वी हैव 4 डॉटर सेल्स। ये माइटोसिस जो होता है वो सिंगल डिवीजन होता है, बट मियोसिस जो है वो डबल डिवीजन है। पहले 2n डिवाइड हुआ n और n आगे जाकर सेकेंड डिवीजन में फिर से डिवाइड हुआ n और n। ये माइटोसिस डबल डिवीजन है। 2n ये डिवाइड हुआ एज ए n एंड n, और ये दोनों n जो है आगे चलकर और डिवाइड होते हैं n और n में। सो हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ माइटोसिस यू आर गोइंग टू हैव 4 डॉटर सेल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ऑलरेडी डिस्कस, इसमें सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इसमें जो है 2 न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडेंटिटी ऑफ अ क्रोमोसोम एंड जीन्स इन अ डॉटर सेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉटर सेल और मदर सेल के क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है या सेम है, बट यहाँ वैसे नहीं होता है, दे आर रैंडमली एजोटेड। और ये रैंडम एजोटमेंट क्या है वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज जीनेटिक्स। So these are the differences between mitosis and meiosis, and please concentrate on this particular page because as told earlier आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पेज से। I hope you have understood both mitosis and meiosis। हाँ, meiosis हम लोगों ने डिटेल में नहीं किया, उतना ही किया जितना हमारे सिलेबस में, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ, बट आपके सेल्फ स्टडी के लिए आप और जानकारी हासिल कर सकते हो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। And before we start, please check out the scope of the syllabus for this chapter. Now look at this figure. Wow, 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 what a beautiful figure. Now if you look at the figure, the first part which you have to concentrate on is the gene. Now these genes combine together to form a DNA. DNA is a double helix structure. Yes, we are going to study about this DNA in a great detail. So genes combine together to form a DNA. This DNA appear like a thread-like structure. You will see there are 8 balls which are made up of protein, and these balls are called histones. These 8 balls are called or wounded by a DNA, and each unit is called nucleosome. So you can see these nucleosome, and they are bind together by a DNA. And further they combine together to form a dense thread-like structure, which again coils become thick and gives you appearance of this chromosome. And this chromosome is made of 2 chromatid sisters. So this is one chromatid and this side it is the other chromatid. These 2 chromatid sisters are joined together at the center by a centromere. You are asked a technical terms in the examination from this diagram. Like they ask you about a nucleotide, they ask you about the histone, they ask you what DNA is made up of, what genes are. So let me repeat this for one more time. Genes combine together to form a DNA. DNA is a double helix structure. Let us start in the reverse order. Let us start with chromosome. In the nucleus of each cell, the DNA molecule is packed into a thread-like structure called chromosome. So in a cell there is nucleus, and this chromosome is situated inside the nucleus. Each chromosome is made up of DNA tightly coiled around the protein called histone that supports the structure. This is the diagram of the chromosome. You need to practice this diagram not in the objective test, but in the subjective test there is a possibility that this diagram may be asked to be drawn. So practice, it's very easy. The chromosome in its condensed form consists of 2 sister chromatids joined by a centromere.
So we have seen a diagram which shows that two sister chromatids, one on the left side and another on the right hand side, they are joined together by a structure called centromere. In this chapter you have lot of C's like chromosomes, chromatin, chromatid fibers, centromere, centriole, centrosome. So this C can be haunting. It can give you nightmares, but don't worry. Prepare the list of all the words starting from C. Write them on a page. Write what does each mean. Repeat this several times. I'm sure your confusion will be over. Now the very important part of this chapter, that is composition of chromosome. We have seen a chromatin thread. Look at this diagram. Genes forming a DNA coiling around the 8 ball-like structure called histones, which are made up of protein. The DNA with the histone forms a complex called nucleosome. It is interesting to note that these 8 histone balls are bounded by DNA exactly twice, sirf 2 बार. And further, when they coil together, if you closely observe it, you will see that it gives a dotted structure or a bead-like structure. And as they coil further, they condense to form a chromatin. Chromosome is made up of this chromatin threads. Chromatin threads form chromatid sisters joined by a centromere. Now exam time. I will show you a diagram. So what you have to do is look at the diagram, pause your video, write down the names of the part, and then you can check with the given answers. Two important definitions, one of chromosome and another one of a gene. So chromosome carry heredity information from one generation to another. So these chromosomes are responsible for carrying out heredity information from one generation to the another generation. We see that in a family there are members whose skin color is same or they have some common peculiar characteristics. So this is because of these chromosomes. And gene is a unit of heredity. Remember, gene which forms a DNA is a unit of heredity. Again, very important question from your examination point of view. Now comes the most important unit of this part. Please concentrate, try and understand each and everything. Believe me, it is very easy if presented in a systematic way. Only required is your 100% attention, and I am sure you are going to give that. So DNA is a macromolecule, means DNA is a large molecule, and it is a double helix structure. That is, it is made up of 2 strands, one on left hand side and another on the right hand side. And this structure was given to us by Watson and Crick, and they got a Nobel Prize for their wonderful work. When we say it is a double helix structure like a ladder which has 2 strands, then these 2 strands have to be attached by something. Here it is attached by a hydrogen bond. Later with the diagram, we will see how this hydrogen-hydrogen double bond and hydrogen-hydrogen triple bond connect these 2 strands. Now, after confusing all C's, that is chromosomes, chromatin, chromatids, centromeres, here this is another confusing N. Already we have seen nucleosome, 8 histones wound twice by a DNA. Here comes another another term called nucleotide. बच्चों याद रखो, what is nucleosome and what is nucleotide? They are totally different. Now each strand is composed of repeating unit known as nucleotide. इसको समझेंगे हम लोग डायग्राम के साथ. So look at this diagram. This is a nucleotide. Can you see pink color? That is a phosphate group. Then comes a pentose sugar or a pentose sugar. It got a name pentose sugar from its shape. And then blue color nitrogen base. So ये repeating unit है. एक nucleotide के नीचे दूसरा nucleotide, उसके नीचे और एक, उसके नीचे और एक, and a strand is formed.
one on this side and another on this side, and these are joined together by a hydrogen bond. कितना interesting, कितना easy. So what is a nucleotide? It consists of 3 components. तो देखा हमने जो rectangular shape में है वो है नाइट्रोजन बेस, उसके बाजू में है पेंटोज शुगर, a shape like a pentagon, और उसके आगे पिंक सर्कल में देख सकते हो आप लोग अब फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हुआ एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई अनेक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं डीएनए का स्ट्रैंड। तो ये 5th पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, अब इसको समझते हैं बिल्कुल फुर्सत से, बिल्कुल आराम से। तो हमने देखा ब्लू कलर का जो डब्बा था, रेक्टेंगल था, वो था नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो 4 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। और इसका कॉम्बिनेशन भी बड़ा अजीब होता है। इसमें से एडिनाइन और गुआनाइन को कहते हैं प्यूरिन्स, और साइटोसाइन और थाइमाइन को कहते हैं पिरिमिडिन्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे नाम है। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, यू कैन रिपीट विथ मी। एडिनाइन, गुआनाइन, AG, जिनको हम कहते हैं प्यूरिन्स, साइटोसाइन एंड थाइमाइन, जिसको हम कह सकते हैं पिरिमिडिन्स। तो नाइट्रोजनस बेस बना है 2 ग्रुप से, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स यानी कि एडिनाइन एंड गुआनाइन, एंड पिरिमिडिन्स यानी कि साइटोसाइन्स एंड थाइमाइन। You have to pay attention to this detail. Adenine of one strand is paired with a thymine of the other strand. Similarly, cytosine of one strand is paired with the guanine of the another strand. And these are called complementary base pairs. इसे याद कैसे रखेंगे? AT means adenine pair with thymine, and CG means cytosine pair with guanine. So ATCG, 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 ये याद रखना है। डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट करते हैं। नाउ लुक एट दिस DNA, अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये तो गोल गोल घूमता है, लेकिन हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे सीधा किया हुआ है। देखिए, वन स्ट्रैंड एंड द अदर स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड में ये एक पेयर है जो लेंथ वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ईच यूनिट ऑफ फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड एक के नीचे एक जॉइंट होते हैं टू फॉर्म वन स्ट्रैंड। सेम थिंग in this opposite side also. Now look at the nitrogenous bases. They are paired by a hydrogen bond. देख रहे हैं आप लोग ATCG। आपको ध्यान देना है, AT पेयर होते हैं हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से, और CG पेयर होते हैं हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से। है ना इजी? अगर डिफिकल्ट लगता है तो क्या, रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से देखो, बार बार देखो जब तक आपको रट नहीं जाता है। अब देखते हैं, अगर जीन का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा गया तो आपको क्या लिखना है। तो जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पता है ना, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, इसका एक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसे अनेक यूनिट ऑन अ क्रोमोसोम अपना अलग यूनिक कोड बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऐसा कुछ अपना कोड बनाते हैं जो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। अगर आप फिंगरप्रिंट्स भी ले लो तो हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट, दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन हर एक का फिंगरप्रिंट दूसरे के फिंगरप्रिंट से अलग होता है। जैसे हम मॉल में जाते हैं, मॉल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ पर बारकोड होता है जिसे स्कैन किया जाता है। देखने में तो वर्टिकल लाइंस और सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, बट हर एक का अपना कोड होता है। वैसे ही इस जीन्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उनके अपने अपने कोड्स होते हैं, और ये यूनिक कोड्स होते हैं जो हर पर्सन के लिए अलग होते हैं। तो व्हाट कैन वी राइट अबाउट दी जीन्स? जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स on a chromosome that encodes particular protein. Now समझ लो कि प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फैक्टर। तो हिस्टोन हो, जीन हो, DNA हो, सब कुछ बनता है प्रोटीन से। तो आगे बढ़ते हैं। दैट एनकोड्स पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द बॉडी। तो ये डेफिनेशन है जीन्स का।
अब आगे बढ़ेंगे। हमारे अर्थ पर कई करोड़ लोग रहते हैं। ऑल ह्यूमन शेयर 99% ऑफ सेम डीएनए। इसका मतलब है किसी भी दो इंडिविजुअल का डीएनए देख लो, 99% जो होता है वो सेम होता है, सिर्फ 1% डिफरेंट होता है। बट दिस 1% शोज ट्रेमेंडस वेरिएशन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये 1% ही काफ़ी होता है, ये 1% ही काफ़ी होता है जो काम आता है क्रिमिनल केसेस में। और इससे पता भी लगाया जा सकता है कि इंडिविजुअल के कौन से असली माता पिता है। बच्चा अगर बिछड़ जाता है माँ बाप से और फिर मिलता है कई सालों के बाद में, तो ये डीएनए टेस्ट करा कर पता कर सकते हैं कि ये बच्चा और ये इसके असली माता पिता है कि नहीं। So on this note, we come to the end of this complicated chapter, which I believe I have made easy for you. So please don't forget to share this video with your friends. Also subscribe my channel and hit that notification button so that you get a notification whenever I post new video like this. I wish you all the best and have the successful life.